الشیطان الرجیم بسم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں اور پھر ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بنیں۔ تو الحمدللہ ہمارا لاسٹ ہوا تھا جنگ موتا تک کا۔ جنگ موتا جو ہوئی تھی وہ کس کے خلاف ہوئی تھی؟ جو رومنز ہے ان کے خلاف ہوئی تھی۔ جب مسلمانوں کے ایک سفیر کو ان لوگ نے قتل کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینکوں کو بھیجے، سپاہیوں کو بھیجے کہ جا کے ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اور پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کیے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے زید بن حارثہ کو یہ لیڈر بنائے تھے، بولے کہ اگر وہ نہیں رہیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ لیڈر بنیں گے، اور وہ نہیں رہیں گے تو عبداللہ بن رواحہ ان کے انچارج بنیں گے۔ تو پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بول کے بھیجے تھے، کیونکہ اب یہ اس لیے تھا کیونکہ جو سامنے لوگ لڑنے جا رہے ہیں وہ رومنز کیا ہے؟ سپر پاور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پہلے سے ہی بتا کے بھیجے تھے کہ اس طرح سے ہوگا تو تم اس طرح سے لڑائی کرنا کر کے، یہ تو تینوں کو پہلے سے اپوائنٹ کر کے بھیجا گیا تھا۔ اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا جب وہ بول رہے ہیں تو سارے صحابہ کو یہ سمجھ میں آئی گئی رہیں گی بات کہ یہ جو صحابہ لوگ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے، کیونکہ جب وہ بول رہے کہ یہ نہیں رہیں گے تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ضرور ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح وہاں پہ ہوا بھی کہ وہ اتنی بڑی جو تھی، یہ ابھی ان لوگ کے سامنے 2 لاکھ کی جتنی اتنی بڑی آرمی تھی اس کے سامنے مسلمان لوگ تھے، اور ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی تھی ویسے ہی ہے نا، لیکن پھر بھی مسلمان لوگ نے کیا کیے تھے؟ بہت ہی بہادری سے وہاں پہ لڑائی کیے تھے۔ بہت سی بہادری سے لڑائی کرنے کے بعد جو اس میں سے جن سارے جو شہید ہو جانے کے بعد تب بھی وہاں پہ خالد بن ولید بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ تو لوگوں نے کیا کیے؟ خالد بن ولید کو اپنا لیڈر بنا دیا، اور خالد بن ولید کو ایمان لائے ہوئے سمجھو نا 1 ہفتہ یا 10 دن ہی ہوا رہے گا، اور اس کے بعد وہ یہ جنگ میں چلے گئے تھے۔ اور خالد بن ولید کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے کمانڈر تھے۔ جب وہ قریش کے ساتھ بھی تھے تو جنگ احد ہمیں انشاءاللہ یاد ہے، تو جنگ احد جو تھی، جو قریش کے لیے ہار میں ہوتی ہوتی جیت کی طرف بدل گئی تھی، تو اس کا سہرا پورا کس کے سر پہ جاتا ہے؟ خالد بن ولید کے سر پہ۔ تو یہ بہت ہی اچھے کمانڈر تھے۔ تو انہوں نے کیا کیے؟ انہوں نے اس دن بھی بہت بہادری سے لڑے، اور اس دن کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں 20 تلواریں ٹوٹ گئی، کہ انہوں نے اتنی بہادری سے لڑائی کی کہ 20 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی۔ اب اس دن پھر جب شام ہوئی تو پہلے کے زمانے میں کیسے ہوتا تھا کہ شام ہو گئی تو جنگ کو روک دیا جاتا تھا، پھر نیکسٹ ڈے صبح میں جنگ ہوتی تھی۔ تو خالد بن ولید نے کیا کیے؟ انہوں نے دیکھے کہ سامنے بہت بڑی سینا ہے اور ان لوگ بہت کم لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا کیے؟ انہوں نے دماغ استعمال کیے اور کیا کیے؟ سارے لوگوں کو پہلے تو بدل دی، اور کچھ لوگوں کو یہ دیے کہ جب تم جنگ شروع ہوگی تو اپنے ہے نا پیر ایک دم زور زور سے زمین پہ پٹکنا، اور ہے نا وہ مٹی نا اڑنا چاہیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے لیفٹ سائڈ والے، رائٹ سائڈ والوں کو سب کو یہ حکم دیے کہ وہاں پہ سے لیفٹ سائڈ سے اور رائٹ سائڈ سے تم لوگ اس طرح سے مٹی پٹکنا تاکہ ایسے لگے کہ بہت مٹی ہے نا اوپر چڑھ جائے آسمان کی طرف۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو سامنے جب ان لوگ نے دیکھے جو بھی رومنس کے امپائر تھے تو سارے نئے لوگ نظر آئے، اور اس کے بعد ہے نا جو سینک لوگ نے کیا کیے؟
अपनी मट्टी अपने जब पैर जमीन पे पटके तो जो मट्टियां उड़ रही थी, तो उससे उन लोग को क्या लगा कि अभी इन लोग के पास और न्यू आर्मी आ गई है, प्लस उन लोग को एड करने के लिए और क्या हो रहा है, और नई आर्मी आ रही है। और खालिद बिन वलीद ने क्या हुक्म दिए थे कि अभी लड़ते लड़ते हम लोग को अंदर की तरफ नहीं जाना है, अब हम क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ हटेंगे। हम पीछे की तरफ हटेंगे और दुश्मनों को हमारे साथ अंदर की तरफ लेकर आएंगे। और जब हम लोग रेगिस्तान में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, रेगिस्तान में हम बहुत अच्छी तरह से जंग लड़ सकते हैं, वो उतनी अच्छा उन लोग रेगिस्तान में उन लोग नहीं लड़ाई कर सकते। तो ये दुश्मन लोग भाग गए कि इन लोग का ये इरादा है। जब उन लोग ने देखे दुश्मन लोग, और उन दुश्मन लोग को लगा कि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी आर्मी आ रही है और इन लोग हम लोग को क्या करने चाहते हैं कि हम लोग को रेगिस्तान की तरफ लेके जाएंगे और वहां पे इन लोग हम लोग को सब घेर के मार देंगे, तो दुश्मन लोग वहीं पर रुक गए और उन लोग पलट के भाग गए वहां से। उन लोग अंदर की तरफ लड़ते लड़ते अंदर की तरफ नहीं आए, वहीं से भाग गए। और फिर जो थे खालिद बिन वलीद ने बाकी सारे लोगों को बचाकर वापस मदीने की तरफ लेकर आए। अब जब मदीने की तरफ लेकर आए, अब ये जो बात थी पूरे अरब में फैल गई कि छोटे से 20,000 के करीब के जो लोग हैं मुसलमान, वो उन लोग 2 लाख पे भारी पड़े करके। और मुसलमानों की बहुत वहां पे ये होने लगी, जो इज्जत बहुत बरकरार हो गई, क्योंकि सिर्फ एक उन लोग की जो रोमन लोग की गलती क्या थी कि एक उन लोग ने सफीर का कत्ल किया। सिर्फ एक इंसान के बदले क्या हुआ, इन लोग की पूरी इज्जत दाव पे लग गई, रोमन्स लोग की, जो लोग के वो उस वक्त के सुपर पावर थे। लेकिन जब वो मदीना में दाखिल हुए तो मदीना के लोग ना नाराज थे उन लोगों से, कि उन लोग को कैसा, उन लोग को क्या लग रहा था कि जब आप लोग गए थे तो आप लोग या तो जीत के आना चाहिए था या शहादत लेके आना चाहिए था। तो सारे जो औरतें और कुछ सहाबा लोग एतराज करने लगे, तो उस पर नबी वसल्लम ने बोले कि नहीं, इन्होंने बहुत सही काम किए, मतलब जबरदस्ती से अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इन लोग जीत के ही आए, क्योंकि सामने वाले भाग गए, सामने वाले उन लोग के साथ लड़ाई नहीं करे, उन लोग पीछे हट गए। तो इन लोग की बहुत ये की कि इन लोग ने बहुत अच्छा काम किए, इन लोग अपने है ना वापस अपने कुंबे के पास आ गए, ताकि अपनी ताकत और बढ़ाए, और बढ़ा के फिर और जाके अच्छे से लड़ाई कर सके। अब जंग मुता के बारे में बताया जाता है कि इसमें जो मुसलमानों के थे 12 शहीद हो गए। अब 12 में से मैंने 3 के तो पहले ही नाम गिनवा चुकी हूँ, जो सबसे बड़े बड़े लीडर्स थे मुसलमानों के, जैसे कि जैद बिन हारिता, जाफर रजी अल्लाह अन्हु, ये जो शहीद हो गए थे ये सारे लोग। और जो रोमन्स थे, उनके नंबर्स के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है बराबर से, लेकिन मतलब जैसे कि आर्मी थी इतनी बड़ी, 2 लाख की आर्मी थी, और और ये मुसलमान लोग इतनी बहादुरी से लड़े थे, तो उनके भी बहुत सारे ज्यादा लोग क्या हो गए थे, कत्ल हो गए थे। अब ये जब ये सारी आर्मी वापस आई, अब उसमें से 12 जो शहीद हो गए, तो उनके घर में क्या हो गया, गम का माहौल हो गया। और अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैद बिन हारिसा और जाफर रजी अल्लाह क्या थे, नबी वसल्लम के खानदान में से थे। और वहां पे मतलब क्या हाल हुआ रहेगा। और जैद बिन हारिसा के बारे में हमको सबको पता है कि जैद बिन हारिसा पहले क्या कहलाए जाते थे, जैद बिन मोहम्मद कहलाए जाते थे। तो मतलब यहाँ पे नबी वसल्लम के एक बेटे के जैसे जो है उनका कत्ल हो गया है, वो शहीद हो गए हैं। प्लस जाफर रजी अल्लाह अन्हु जो क्या है, जो कजिन है, रिश्ते में क्या लगते थे, वो कजिन लगते थे, चाचा के बेटे, भाई है, चाचाजाद भाई है, वो भी शहीद हो गए। तो नबी वसल्लम को बहुत बहुत ज्यादा दुख था। अब इससे पहले ही, इसे 2 हफ्ते पहले ही की मैंने बताई थी कि जब जाफर रजी अल्लाह अन्हु वापिस आए थे, तब नबी वसल्लम बहुत खुश हुए थे और उन्होंने उनको गले लगाए थे, क्योंकि वो कहाँ से आए थे, एबिसीनिया से हिजरत कर कर आए थे। तो उसके वो बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने बोले भी थे कि मुझे आज है ना समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी ज्यादा खुशी है, कि तुम जो आ गए हैं उसकी खुशी है, करके उन्होंने बोले भी थे। और जाफर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो है ना नबी वसल्लम से बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे, क्योंकि वो चाचा साथ भाई भी थे ना, तो वो देखने में है ना बहुत ज्यादा नबी वसल्लम से मिलते जुलते थे। नबी वसल्लम फिर है ना जाफर रजी अल्लाह अन्हु के घर पे गए, और उनको उनके जो बच्चे थे उन लोग को देखे, और उन लोग को दिलासा दिए। प्लस उन्होंने है ना जाफर रजी अल्लाह अन्हु की जो ये फैमिली थी, उनकी वाइफ जो थी अस्मा बिनते कैस,
उनको सबको बहुत दिलासा दिए। और जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये था जंग में कि क्या हुए थे, उनके दोनों हाथ को काट दिया गया था। तो उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बोले कि जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या किए हैं, 2 पर दिए हैं। 2 पर दिए हैं जन्नत में, ताकि वो जहाँ चाहे वहाँ पे उड़ के जा सकते। और फिर न वहाँ पे जब रो रहे थे तो बहुत ज़ोर से ज़्यादा मातम करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दी, कि पहले वहाँ पे अरब में ट्रेडिशन होता था कि बहुत ज़ोर से रोना करते थे, रोना-पलाना और ये सब किया जाता था, तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिए। कि जो मातम है वो नहीं करना, तुम रो सकते हो, क्योंकि आँसू जो है उसका इंसान के ऊपर कुछ ये नहीं होता है, बस नहीं होता है, वो खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो तुम रो सकते हो, तुम गमगीन रह सकते हो, लेकिन ज़ोर-ज़ोर से मातम करना और ये सब करना, ये सब के लिए मना कर दिए। और फिर जो मुसलमान हैं उन लोग को बोले कि तुम क्या करो, जो इनके इनकी घर वालों की देख-रेख करो, ज़्यादा हकदार कौन होते हैं, आस-पास के लोग और रिश्तेदार, कि अभी उन लोग इतनी गमज़दा हालत में, तो उनको देखभाल करना तुम्हारा काम है करके ये भी बात नबी वसल्लम ने बताए थे। फिर अब ये हो गया, जंग मुता यहाँ पर खत्म हो गई। अब इसके बाद एक है ना, और 2-3 ऐसे छोटे-मोटे सराया है, उसमें एक जो है वो दातु सलासल करके ये एक सराया था। अब ये दातु सलासल मतलब ये जो जहाँ पे ये सराया हुआ था, उस जगह पे एक कुआँ था जिसका नाम था सलासल, तो इसलिए इसको दातु सलासल कहा जाता है। अब यहाँ पे भी है ना कुछ जो रोमन्स एम्पायर के ये करीब में एक जो गाँव था, तो वहाँ पे अटैक करने के लिए मुसलमान लोग गए थे, क्योंकि उन लोग अटैक करने वाले थे, इसलिए नबी वसल्लम को खबर आई, तो नबी वसल्लम ने अम्र बिन आस को भेजे उनके साथ कि जाओ वहाँ पे जाके ये देखो कि उन लोग हम पे अटैक करने वाले हैं, ऐसा कुछ इरादा है, तो तुम वहाँ पे जाओ और देखो। और वहाँ पर है ना रास्ते में जहाँ पे वो जगह थी, जो गाँव था, वहाँ पर एक है ना बाली का कबीला था, और उस बाली के कबीले के जो थे ना, उसकी दादी है ना उस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे उनकी दादी, तो इसलिए नबी वसल्लम ने क्या किए, अमरा बिन आस को उस जगह पे भेजे और बोले कि जब तुम जाओगे तो फिर उस कबीले से भी क्या करना है, तुम मदद लेने लड़ाई करने के लिए। तो ये अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे निकले, झंडा लेके हुए, और उनके साथ 300 मुहाजिरीन जो थे वो गए हुए थे। और है ना उनके साथ 30 आदमी लोग थे। 30 आदमी लोग जो थे अंसार के 30 आदमी लोग जो घोड़े पे थे, ये लोग वहाँ पे जंग करने के लिए गए। अब जब इन लोग वहाँ पे गए और रात को उन लोग ने अपना पड़ाव डाले, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो सामने जो दुश्मन है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने अम्र बिन आस ने क्या कर दिया, एक खत लिख के भेज दिए कि सामने दुश्मन बहुत ज़्यादा है, तो है ना और आर्मी भेजो। इन लोग सिर्फ़ 300 लोग गए हैं, तो इसलिए और भेजो करके। तो जब नबी वसल्लम को ये बात पता चली, तो नबी वसल्लम ने उबैदा बिन जर्राह के हाथ में अबू उबैदा बिन जर्राह को भेजे, उनको लीडर बना के भेजे, और उनको उनके साथ 200 आदमी भेजे, जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब भी शामिल थे। अब ये 200 लोग जाके वो 300 लोगों से मिल गए, और अब तक इन लोग ने क्या नहीं किए, जंग नहीं किए हैं, और इन लोग सिर्फ कैंप डाल रहे हैं और जाके मिल गए। अब है ना ज़ोहर का नमाज का वक्त आया, अब तो है ना अबू उबैदा बिन जर्रा जो थे वो नमाज पढ़ाने जा रहे थे, मतलब इमामत करने के लिए जा रहे थे। तो हजरत अम्र बिन आस ने उनको रोक दिए। उनको बोले कि आमिर मैं हूँ, जो नबी वसल्लम ने मुझे क्या भेजे थे, मुझे आमिर बना के भेजे थे, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं नमाज़ अदा कर रहा हूँ, मैं बाजमात नमाज़ मैं अदा कर रहा हूँ। आपको सिर्फ़ मेरी मदद के लिए भेजा गया था, आपको आमिर बना के नहीं भेजा गया था। तो इस तरह से फिर हज़रत अम्र बिन आस जो थे, उन्होंने क्या की, उन्होंने इमामत की और उन्होंने ही ये वो नमाज़ पढ़ाई। फिर वहाँ पे जंग में जाके ये वहाँ पे जाके मुसलमान लोग ने लड़े, कूदा करके एक जो जगह थी वहाँ पे लड़े, और दुश्मनों के साथ लड़के फिर वहाँ पे फ़ाते होके इन लोग वापिस आए। अब आगे क्या हुआ, अब ऐसे ही थोड़े बहुत ऐसे चल रहे हैं, उसमें क्या हुआ, अब जो फ़तह मक्के का वक़्त आ गया।
अब क्या हुआ था, जब हम जानते हैं हुदैबिया का जो ट्रीटी थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो चाहे वो है ना मुसलमानों के साथ ज्वाइन कर सकता है कबीला, और जो कबीला जो आसपास के जो कबीले हैं छोटे मोटे, तो उसमें से जो चाहे वो कुरैश के साथ हो सकता है और जो चाहे वो मुसलमानों के साथ हो सकता है। और जो इन लोग में ये जो बात तय हुई थी कि है ना एक दूसरे के साथ हम लोग लड़ाई भी नहीं करेंगे, और अगर कोई दुश्मन है तो हम क्या नहीं करेंगे, उसकी मदद भी नहीं करेंगे। एक दूसरे के साथ खिलाफ लड़ने में हम किसी की मदद भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो कुरैश के साथ मिलना चाहते थे वो कबीले कुरैश के साथ मिल गए, और जो लोग मुसलमानों के साथ मिलना चाहते थे तो वो कबीले मुसलमानों के साथ मिल गए। अब एक बनु बकर करके जो कबीला था वो कुरैश के साथ मिल गया था, और खुजा करके जो एक कबीला था वो है ना मुसलमानों के साथ मिल गया था। अब ये बनु बकर और खुजा कबीले में भी दुश्मनी चलती थी, आसपास के इन लोग रहते थे नजदीक में, तो इन लोग में भी ऑलरेडी से पहले से दुश्मनी चलती थी। लेकिन अब हुदैबिया के तहत इन लोग भी केस में आ गए थे, इन लोग भी ट्रीटी में आ गए थे कि इन लोग क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे करके। तो दोनों एक एक इत्मीनान से थे, जो बनु बकर वाले थे और खुजा वाले थे इत्मीनान से थे, क्योंकि अब उन लोग भी ट्रीटी में बन गए हैं कि इन लोग एक दूसरे के साथ जंग नहीं करेंगे। लेकिन जो ये बनु बकर लोग थे उन लोग ने क्या किए, एक दिन उन लोग को जब मौका मिला तो उन लोग ने क्या करे, खुजा कबीले पे अचानक से हमला कर दिए। अब ये खुजा कबीले इन लोग ने सोचे नहीं थे कि बनु बकर हम पे अटैक कर देंगे। उन लोग ने क्या समझे थे, इन लोग हमारे साथ ट्रीटी में आ गए तो उसके तहत इन लोग हमारे पे अटैक नहीं करेंगे, तो इसलिए इन लोग क्या कर रहे थे, इन लोग आराम से थे, इन लोग ज्यादा तैयार वैयार होके नहीं थे। तो लेकिन अचानक से बनु बकर के कबीलों ने क्या किए, कबीले वाले लोग ने खुजा कबीले पे अटैक कर दिए। अच्छा, अब ये बात है ना, जो ये बनु बकर लोग अटैक करने वाले हैं खुजा के कबीले पे, ये कुरैश लोग को पता थी। अब कुरैश के ना कुछ लोगों को, मतलब जैसे जो जवान और जंगी किस्म के लड़के लोग थे, नौजवान लोग थे, उन लोग को पता थी। तो इन लोग ने क्या किए, बनु बकर को मना भी नहीं की, और इन लोग ने क्या किए प्लस साथ भी दे दिए बनु बकर का। अब कुरैश लोग को क्या करना चाहिए था, वहां पे मना करना चाहिए था कि तुम लोग क्या है हमारे साथ ट्रीटी में बंधे हुए हो, तुम लोग ऐसा अटैक नहीं कर सकते। तो इन लोग ने रोकने के बजाय क्या किए, बल्कि इन लोग ने हथियारों से और खुद भी जाके कुछ लड़के लोग उनके साथ बनु बकर के साथ मिलके जाके उन लोग ने भी मिलके अटैक कर दी। अब ये क्या हो गई, ट्रीटी टूट गई। जो इन लोग ने जो ट्रीटी थी हुदैबिया की, जो ट्रीटी के तहत इन लोग ने क्या किए थे, वो ट्रीटी को तोड़ दिए। अब है ना जो बनु बकर का जो लीडर था वो इतना इतना बढ़ गया कि खुजा के लोग जो थे कबीले के, उन लोग मतलब उन लोग पे अचानक से हमला हुआ तो उन लोग भगदड़ मच गई और उन लोग भागने लगे, तो उन लोग ने क्या किए, बनु बकर के लोग उनको पीछा करके मारे। अब ये खुजा के कुछ लोग हैं ना, इसमें भी आ गए थे, मक्का के अंदर आ गए भागते भागते, लेकिन इन लोग ने क्या किए, वहां पर भी जाके वो लोगों को मारे, जबकि मक्का के अंदर नहीं मारना चाहिए, फिर भी उन लोग ने क्या किया, वहां तक भी जाके मारे। तो अब ये जो खुजा के कबीले का ये जो था सरदार, उसने क्या किया, नबी वसल्लम के पास गया। अब ये बात सारे मुसलमानों को पता चल गई कि इस तरह से क्या हो गई है, बनु बकर वाले लोग ने ट्रीटी को तोड़ दिए है करके। अब ये ट्रीटी के हिसाब से जो था उसमें अभी इन लोग को क्या करना चाहिए था, चलो अगर तुमने ट्रीटी तोड़ दिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेगा, फिदिया देना पड़ेगा। तो या तो सबसे पहले जो खुजा के लोगों को तुम क्या करो, फिदिया दो, और या तो फिर कुरैशी लोग को क्या है कि अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, बनु बकर के साथ है ना अपनी ट्रीटी छोड़ देना पड़ेगा। मतलब बनु बकर को अकेले छोड़ दो, अब तुम क्या कर नहीं सकते, बनु बकर को अपने साथ नहीं रख सकते, उन लोग को अकेले छोड़ दो, क्योंकि उन लोग ने इस तरह से काम किए ना। या तो अगर तुम बनु बकर का साथ दे रहे हो और पैसे भी नहीं दे रहे हो तो हम लोग क्या समझेंगे, जो तुम्हारा अहद है मुसलमानों के साथ वो टूट गया है। अब जब ये बात, अब ये कंडीशंस उन पे आ गई थी, कुरैश के ऊपर ये कंडीशंस आ गई थी। और तो अब है ना, जब बड़े बड़े जो थे कुरैश के, उन लोग को सारी ये बातें पता चल गई कि इन लोग के कुछ नौजवान भी थे, उन्होंने क्या किया, खुजा के लोग बनु बकर के लोगों का साथ दिए हैं और लड़ाई किए हैं। तो जो अबू सुफियान थे वो बहुत ही नाराज हुए, और वो समझ गए, मतलब ये सब बड़े बड़े जो लीडर्स थे और दूरंदेश थे, उन लोग समझ गए कि इन लोग ने क्या कर लिए है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अबू सुफियान को जब पता चला तो उन्होंने क्या बोले कि तुम लोगों ने क्या कर दिए है, खाक डाल दी है मेरे सर पे, मतलब मुझे तुम लोग ने पूरा मारने का इंतजाम करके रख दिए, खाक डाल दिए मेरे सर पे करके। तो फिर भी अबू सुफियान ने क्या सोचे कि मैं किसी तरह से जाता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हूँ,
اور ہے نا کہ یہ جو ہماری جو ٹریٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کر کے. تو وہ ہے نا اس ارادے سے مل کے جب سارے جو بڑے تھے قریش کے، ان لوگ نے بولے کہ کسی طرح سے اب ہم کو کیا کرنا ہے، یہ ٹریٹی کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، اس کو ہم کو یہ کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگے مسلمان لوگ ہم پہ اٹیک کر دیں گے کر کے. ہم لوگ نے بہت بڑی غلطی کر دی. تو سب سے پہلے یہ ابو سفیان جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ کی طرف روانہ ہو کے وہ سب سے پہلے کس کے گھر پہ گئے؟ ام حبیبہ کے گھر پہ گئے جو ان کی بیٹی تھی. اور یہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہے نا نبی علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اور یہ کہاں پر تھی ام حبیبہ؟ ابیسینیا میں گئے. جو سب سے پہلی جب ہجرت ہوئی تھی تو ان کی بیٹی جو تھی ابو سفیان کی بیٹی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر گئی تھی ابیسینیا میں. لیکن ہجرت کرنے کے بعد جو ان کے جو شوہر تھے وہ وہاں پر ابیسینیا جانے کے بعد کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے. انہوں نے اسلام چھوڑ دیے تھے اور پھر کچھ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے تھے وہاں پر، تو انہوں نے کیا بولے تھے؟ انہوں نے یہ بات بولے تھے کہ وہاں پہ جو ام حبیبہ ہے ان سے ہے نا میرا نکاح کرا کر دو کر کے. وہاں پہ راجا کے ذریعے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا یہ پیغام بھجوائے تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیے تھے؟ قبول کر لیے تھے. اب یہاں پہ اور ایک بات ہم کو سوچنے کی بات ہے کہ نبی علیہ وسلم نے کیوں نکاح کا پیغام بھجوائے تھے؟ اب جب ام حبیبہ جو تھی وہ کون تھی؟ ابو سفیان جو ہے ان کی بیٹی ہے، جو کہ ان کے دشمن کی بیٹی ہے. تو لیکن یہ کس لیے یہ نکاح کے پیچھے جو تھا وہ کیا مقصد تھا؟ یہ نکاح ہے نا ایک پولیٹیکل یہ تھا. جو ام حبیبہ جو تھی وہ کیا تھی؟ قریش کے ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے. تو اس سے کیا ہو رہا تھا؟ اگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح ہوا تو اس کے بعد ہم دیکھتے جو خالد بن ولید ہے، جو ایک قریش میں ایک جو بہت اچھی پوزیشن میں رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کیا کر لیے تھے؟ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیے تھے. تو جو دشمنی جو ذاتی تک ہوتی تھی، بہت زیادہ گہری دشمنی ہوتی تھی، وہ کیا ہو جاتی تھی؟ وہ کم ہو جاتی تھی لوگوں میں. کیونکہ اب کیا ہو گئی ہے؟ رشتہ داری ہو گئی ہے، تو وہ دشمنی کی انتہا بھی کیا ہو جاتی تھی؟ کم ہو جاتی تھی. تو اس لیے یہ نکاح ہوا تھا. پلس جو ام حبیبہ تھی وہ کیسی تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے نا ہجرت کی تھی. اب اسلام کے لیے ہجرت کیے تھے تو اب دیکھو انہوں نے اپنا سب سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کیے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اب ان کے شوہر ہی وہاں پہ نہیں رہے. پہلے تو وہ مسلمان سے وہ مرتد ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ ابیسینیا میں جو تھے ام حبیبہ جو تھے وہ بہت اکیلے پڑ گئے تھے. اب وہ پلٹ کے واپس مکہ بھی نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے جو والد ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہے. تو وہ کیسے تھے؟ ان کو کوئی سہارا ہی نہیں تھا. اب وہ واپس آ بھی نہیں سکتے تھے واپس، کیونکہ ان کے ابا تو ابھی ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، وہ مسلم ہو گئے، وہ اپنے باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی. اور وہاں پہ جو ان کے شوہر تھے وہ بھی انتقال ہو گئے. اور جرنی کر کے آنا، مطلب ابیسینیا سے ایک عورت کو واپس نکل کے آنا بچوں کے ساتھ، تو کوئی آسان سفر نہیں تھا. کیونکہ پہلے کے زمانے میں سفر کیا ہوتے تھے؟ بہت مشکل ہوتے تھے. ایک قافلے کے ساتھ جانا، اس کے لیے پیسے لگتا تھا، یہ سب. تو وہ وہاں پہ بیچاری بہت تنہا تھی، اکیلے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہاں پہ مدد کی کیونکہ وہ مسلمان تھی، اسلام لالی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایک مدد کے لیے ان کا کیا کرے؟ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام بھیجے. تو ان کے بارے میں جب پیغام بھیجے تو انہوں نے قبول بھی کر لیے. تو ان کی جو دعوت ولیمہ جو تھا وہ وہیں پر ابیسینیا کے راجا نے وہاں پہ کی دعوت. اور پلس ہے نا وہاں پہ جو ان کی وہاں پہ جو آس پاس کی جو عورتیں تھیں انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بہت تحفے تائف سب بھیجے. پھر جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے تھے تو وہ ان کے ساتھ واپس مدینے میں تب وہ واپس آئی تھی. اب یہاں پہ جب سب سے پہلے ابو سفیان نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے. بولے کہ اب میں جب جاؤں گا بات کرنے کے لیے تو میری بیٹی کا میرے ساتھ میں سپورٹ میں کوئی میرے ساتھ کھڑے رہے گا تو بہت زیادہ اچھی ہوئے گی بات. اس لیے وہ کس کو یہ پر پہلے چنے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو چنے اور وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے کہ چلو میں جاتا ہوں، پہلے میری بیٹی سے بات کرتا ہوں، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کروں گا تو میری بیٹی میرے سائڈ میں کھڑے رہیں گے کر کے. تو جیسے ہی وہ گھر پہ گئے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر وہاں پہ رکھا ہوا تھا. تو ان کی بیٹی جو تھے ام المومنین، انہوں نے کیا کیے؟ ان کو بولے کہ ابا جان آپ رک جاؤ. اور انہوں نے کیا کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ باندھ کے لپیٹ کے ہٹا دیا. پہلے کے زمانے میں صوفے ووفے تو ہوتے نہیں تھے، تو وہاں پہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پڑا ہوا تھا.
तो उन्होंने उनके बिस्तर को बांध के हटा दिए। तो अबू सुफियान जो थे उन्होंने ये सारी बात देखे कि उनकी बेटी ने क्या किए, वो बिस्तर को बांध दिए। तो उन्होंने बोले, अपनी बेटी से पूछे कि तुमने ये क्यों बिस्तर बांध के हटा दिए, कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ करके। तो उनकी बेटी ने जवाब दिए कि है ना, ये बिस्तर किसका है? नबी वसल्लम का बिस्तर है। तो लेकिन आप क्या है, आप है ना नापाक है, आप कुफ्र की हालत में हैं, तो इसलिए आप है ना इस बिस्तर के लायक नहीं है। तो ये बात सुन के उनको बहुत दुःख हुआ कि मतलब उनकी बेटी जो है वो नबी वसल्लम के बिस्तर पे भी उनको बिठाने की इजाज़त नहीं दे रही है, बिठाने के लायक नहीं समझती है, तो फिर वो मेरे साइड में होके क्या बात करेगी? तो उन्होंने कुछ भी अपनी बेटी से बात नहीं की है और क्या करे, वो वहाँ से निकल गए। अब निकल के वो है ना जाके हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिले, हज़रत उमर को, हज़रत अली को, ये सबको मिले कि आप क्या करो, आप मेरे साथ चलो, नबी वसल्लम से बात करने की, कुरैश से गलती हो गई है, हमारे से गलती हो गई जो हम लोग ने उनका साथ दे दिए, तो हमारे को सुलह करनी है वापस से, तो आप लोग हमारे साथ चलो। तो ये जो सारे सहाबा लोग थे, उन लोग ने सारे लोग ने मना कर दिए कि नहीं, हम आपके साथ नहीं देंगे, आप लोगों ने जो गलती की है वो आप जानते हैं, आपको बात करना है, आप अकेले जाके बात करो, हम तो आपके साथ देने के लिए नबी वसल्लम के सामने नहीं आएँगे। तो जब उन्होंने देखे कि कोई भी सहाबा हम मेरे साथ नहीं दे रहा है कि नबी वसल्लम के सामने आके बात करने के लिए, तो वो क्या करे, वो वापस पलट के चले गए वापस मक्का में। और लेकिन वो अबू सुफियान जो थे वो भाग गए थे कि अब क्या होने वाला है, अब हमारे लिए जो है कुरैश पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जो अबू सुफियान और जो जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स थे वो समझ गए थे कि अब जो हम लोग ने वादा खिलाफी की है, तो मुसलमान लोग क्या नहीं करेंगे, मुसलमान लोग छोड़ेंगे नहीं, इसका ज़रूर से ज़रूर बदला लेंगे। अब ये जो इसके पहले ही अभी नबी वसल्लम को ये सब बात पता हो गई थी कि इस तरह से होने वाला है, तो नबी वसल्लम ने क्या किए थे, बीबी आयशा को है ना तैयारी करके रखने के लिए बोले थे कि जंग की तैयारी है, तू ज़रा अपना सामान और ये सब चीज़ें उसको है ना तैयार करके रखना, लेकिन है ना ये बात तुम किसी को भी नहीं बोलना। तो बीबी आयशा उसी तरह से मतलब बाहर जाने के लिए जो भी तैयारी जो करना था वो कर रहे थे। तो इतने में उनके वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पे पहुँचे। तो उन्होंने उनकी बेटी से पूछे कि ये किस बात की तैयारी हो रही है? तो उनकी बेटी को जब नबी वसल्लम ने मना किए थे ना कि किसी को भी नहीं बताना, तो बोले कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ये नबी वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते करके उन्होंने कुछ भी उनको बताया नहीं, क्योंकि जब नबी वसल्लम ने हुक्म दिए थे कि मत बताओ, तो उन्होंने अपने वालिद को भी इस बात को नहीं बताया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता है, मेरे शौहर और नबी वसल्लम अच्छे से जानते करके उन्होंने अपने वालिद को भी ये बात बता दी है, जवाब इस तरह से दे दिए। और वो जबकि अच्छे से जानते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे हैं, वो नबी वसल्लम की परछाई हैं और नबी वसल्लम हर बात अब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम ही रहती है करके, लेकिन फिर भी जब जो उनको हुक्म दिया गया था कि तुमको नहीं बताना है, तो उन्होंने उसी तरह से वो हुक्म माना और उन्होंने अपने वालिद को भी कुछ भी नहीं बताया। अब ये मक्के में पूरी मदीने में पूरी बात फैल गई। जो जो यहाँ वहाँ का जो खुज़ा का जो लीडर थे, अम्र बिन सालिम, वो आए नबी वसल्लम के पास आए और उन्होंने बहुत दुआई दी नबी वसल्लम को और बहुत वो टाइम पे सब लोग शायरी करते थे ना, तो बहुत शायर अशआर सब पढ़ के और बहुत दुआई देते हुए उन्होंने बताए कि जो लोग हैं बनु बकर के लोग ने हम पे हमला कर दिए और हम उस वक़्त कैसे थे, हम लोग नमाज की हालत में थे, सिजदे की हालत में थे और इन लोग ने क्या किए, हम पर हमला कर दिए करके। और उन्होंने इस तरह से सब बताए और बोले कि अब क्या करना है, अभी आपको हमारी तरफ से क्या लेना पड़ेगा, इंतकाम लेना पड़ेगा। तो नबी वसल्लम ने बोले कि हम लोग आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे की जो कार्रवाई इंशाल्लाह हम लोग करेंगे करके, उन्होंने उनके लीडर को दिलासा दे के भेज दिए। और अब ये बात पूरे मक्के मदीने में फैल गई कि इस तरह से जो है बनु बकर ने क्या की, ये वादा खिलाफी कर दी और साथ में कुरैश लोग भी शामिल थे करके। तो अब ये सारे लोगों को समझ में आ गया कि अब क्या होने वाला है, अब है ना मुसलमान लोग क्या करेंगे, कुरैश की तरफ हमला करेंगे। लेकिन नबी वसल्लम ने क्या किया, कोई डायरेक्ट इस तरह से नहीं बोले, सिर्फ सब लोग को क्या बोले कि जंग की तैयारी करो करके, जंग की तैयारी करो। फिर उन्होंने क्या किए, अबू कतादा बिन राबी को कुछ 8 लोगों के साथ एक इदम करके जगह थी, उस तरफ रवाना किए।
तो अब सब लोग को क्या लगा कि ये ईदम की तरफ रवाना किए हैं, तो मतलब मक्का की तरफ हम लोग अटैक नहीं करने वाले, हम लोग ये ईदम की तरफ है ना, वहाँ पे अटैक होने वाला है करके। तो थोड़े ज़रा लोग थोड़े इसमें ये आ गए कि इस तरह वहाँ पे उस तरफ जा रहे हैं, मतलब नबी सल्लम का इरादा अभी फ़िलवक़्त तो मक्का की तरफ नहीं है, फ़िलवक़्त कोई दूसरी जगह की तरफ हम लोग ये कर रहे हैं करके। फिर उसके बाद नबी सल्लम ने क्या किए, अपने सहाबा को लेके वहाँ पे उस तरफ वहाँ पे पहुँचे और फिर वहाँ पे ये बात ये की बता दी गई कि अब हम क्या करेंगे, हम मक्का की तरफ अटैक करेंगे करके। तो तब जाके सहाबा को पता चला कि अब हमको क्या करना है, मक्का पे अटैक करना है। नबी वसल्लम ने डायरेक्ट मक्का की तरफ नहीं किए, उन्होंने क्या किए थे, डॉज किए, मतलब मक्का के लोगों को भी पता नहीं चले कि उन पे अटैक होने वाला है करके। अब ये सब जब बात हो रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी थे जिनका नाम हातिब था और ये है ना बदरी सहाबी थे। अब इनको पता चल गया कि मक्के में अटैक होने वाला है। तो इन्होंने क्या किए, इनकी एक पहचान की एक औरत थी, जो है ना उस वक़्त मक्का में मदीने में आई थी और ये औरत के हाथ इन्होंने क्या किया, अब ये औरत क्या करती थी, ये है ना गाने बजाने का ऐसा काम करती थी, तो ये बहुत गरीब थी। तो जब ये आके है ना हातिब के पास ये बोली थी कि मैं बहुत ज़रा गरीब हूँ, मेरी मदद करो, तो इन्होंने अपने आस-पास के लोगों को, अपने खानदान वालों को बोल के जिन लोग को जानते थे उनसे कुछ मदद मुहैया कराई और उसको पैसे दे दिए और जब वो मक्का के लिए वापस जा रही थी तो उसके हाथ में ना एक लेटर भेज दिए और ये लेटर दे दिए और 10 कुछ थोड़े उन्होंने भी पैसे दे दिए उसको और बोले कि ये जाके है ना कुरैश के लीडर को दे देना खत और है ना इस खत के बारे में किसी को भी बताना नहीं, खुफिया तौर पे उन्होंने एक खत भेज दिया। अब ये जो हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो बदरी सहाबी थे और इन्होंने क्या करे है, मक्का के लीडर को खत भेज रहे हैं कि अब मुसलमान लोग तुम पे अटैक करने आ रहे हैं करके, इन्होंने ये पहले से बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये वहाँ पे मुसलमान लोग अभी उन लोग का इरादा कुरैश पे अटैक करना है, मक्का पे अटैक करना है। अब ये बात वही के ज़रिए क्या हो गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया। ये औरत निकल चुकी है, मदीना से मक्का की तरफ जा रही है, वो रास्ते में ही है, तब क्या हो गई, नबी वसल्लम को वही आ गई कि इस तरह से एक खत है जो हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजे है, तो वो खत को रुकवा लो करके। और मदीना से कोई भी खबर है ना मक्का तक पहुँच नहीं रही थी। अब ये सिर्फ़ यहाँ से खत निकला है, तो नबी वसल्लम ने जल्दी से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अल-मिक़दाद और ज़ुबैर और मरथद ये चारों सहाबा को दौड़ाए घोड़े पे कि जाओ जाके उस औरत को पकड़ो, उसके हाथ पे उसके पास खत है, तो वो खत है ना तुम ले लेना, उससे निकलवा लो। और अगर वो खत बरामद नहीं हो रहा है तो फिर उस सूरत में क्या करना है उस औरत को कत्ल कर देना करके। तो अगर खत नहीं मिला तब उस औरत को कत्ल कर देना। तो इसी तरह से सहाबा लोग ने क्या किया जल्दी-जल्दी भागे और उनको रास्ते में वो औरत मिल गई। वो औरत मिल गई तो उस औरत से क्या किया गया पूछा गया कि खत तुम्हारे पास एक खत है, तुम वो खत हम लोग को दे दो। तो वो औरत साफ मुकर गई कि नहीं मेरे पास कोई खत नहीं है और फिर उन लोग ने तलाशी भी ली तो वो औरत के पास खत नहीं मिला। तो फिर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उन्होंने क्या बोले कि देखो हमें जहाँ से खबर मिली है वो है ना खबर कभी भी झूठी नहीं होती है। हमको नबी वसल्लम से खबर मिली और नबी वसल्लम की तरफ से कभी भी कोई झूठी खबर नहीं मिलती। जब उनको खबर दी गई है कि आपके पास खत है तो ज़रूर आपके पास खत है। तो क्या करो वो खत है ना हम लोग को आप सीधे से दे दो। अगर ये खत हमको नहीं मिला तो फिर हम क्या करने वाले तुम्हारा कत्ल करने वाले हैं। तो जब वो औरत को जान की धमकी दी गई और वो समझ गई कि अगर ये हम लोग के हाथ में खत नहीं मिला तो मुझे मार दिया जाएगा, तब जो औरत ने उठा के क्या करी, खत उनको निकाल के दी। उसने क्या करी थी अपनी चोटी में छुपा के रखी थी, अपने बालों में वो खत छुपा के रखी थी, तो उसने फिर वो खत उठा के उन लोग के हाथ में दे दी। अब जब इस दौरान क्या किए नबी वसल्लम ने हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाए और उनको बताया कि मुझे पता चला है, मुझे वही आ गई है कि तुमने क्या किए है कुरैश के लीडर को खत लेके भेजे हैं, तो बताओ तुमने इस तरह से क्यों किए करके। तो उस पर जो हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उन्होंने बोले कि ए अल्लाह के रसूल मैंने ये जो भी किया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया हूँ और मुर्तद बन गया हूँ और मैं कुरैश लोग का सपोर्टर हूँ। इस तरह से मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जो हूँ ना, मैं है ना कुरैश लोग के कोई खानदानी रिश्ते में नहीं हूँ। मैं उनके साथ है ना मेरा कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। मैं तो कहीं से आया था और लेकिन मैं फिर वहीं पे बस गया तो मैं वहीं पर रहता हूँ। तो मेरा है ना किसी के भी साथ वहाँ पे कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो और मैं कुछ ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ।
लेकिन मैं तो यहाँ पर हिजरत करके आ गया, लेकिन है ना मेरे कुछ घर वाले, मेरे करीबी रिश्तेदार क्या है, मेरे घर वाले मतलब उनकी अम्मी वहाँ पे थे शायद, और मेरे भाई लोग कुछ है ना वहाँ पे मक्का में मेरी फैमिली रहती है वहाँ पर। तो अगर मैं है ना अगर मेरा ये खत भेजता तो वहाँ पे ना कोई भी बड़ा कबीला इस तरह से नहीं है जो क्या कर सके, मेरे मेरे घर वालों की हिफाजत कर सके कि ये मेरे खूनी रिश्तेदार है या मेरे करीबी रिश्तेदार है, ये से इनको भी हमारे साथ साथ समझो करके। तो अगर मैं ये खत कुरैश लोग को भेजूंगा तो कुरैश लोग क्या करेंगे, मेरा एहसान मन रहेंगे, और उस एहसान के बदले उन लोग क्या करेंगे, मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की और मेरे जो माँ बाप है उनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए और इस नियत से मैंने क्या किया हूँ, मैंने ये खत भेजा हूँ, और मेरी कोई नियत नहीं थी, मैं इस्लाम पे हूँ, मैं कोई कुफ्र नहीं किया हूँ। तो ये सारी बात सुन के नबी वसल्लम ने बोले कि हाँ आप सही बोल रहे हो करके। फिर वहां पे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बोले कि मतलब इन्होंने तो जो साहबा थे हातिब रजी अल्लाह उनके साथ उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिए थे। अगर हम देखा जाएंगे जंग के हिसाब से और इसके हिसाब से देखा जाएंगे तो उन्होंने जो दुश्मन है उनको इत्तिला भेज दिए कि अब हम आप लोग पे अटैक करने वाले, तो बहुत ज्यादा बड़ी गलती थी। तो उस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बोले कि आप इजाजत दो, मैं इनका क्या करता हूँ, सर कलम कर देता हूँ। तो उस पर नबी सल्लम ने बोले कि नहीं उमर, ये तो है ना बदर के जंग बदर में ये शरीक हुए थे, और तुम क्या जानो कि ये अल्लाह सुब्हान ताला ने बदरियों के जो बदर के जो सहाबी है उनको माफ कर दिए हो करके, इसलिए नबी सल्लम ने क्या किए, उनको उनको कोई भी ये नहीं किए, उनके लिए ये बात आ गई थी कि क्योंकि बदर के जितने भी सहाबा है उनके लिए क्या था कि उनके लिए मगफिरत है करके पहले से ये बात आ गई थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ भी ये नहीं बोले। फिर हजरत उमर जब ये बात सुने, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, तो उन्होंने भी बोले कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी कैसा किस्सा है, ये जो किस्सा है मतलब ये जो अगर हजरत हातिब रजी अल्लाह अन्हु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी, लेकिन उनका जो पर्सनल इशू है तो वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आज के ज़माने में ऐसा को होगा कि मैं चाहता था कि मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वालों की हिफाज़त के लिए मैंने इस तरह से काम किए, तो ये कोई भी ये मंज़ूर करेगा, ये एक्सक्यूज़ कोई भी मंज़ूर करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, उन्होंने इंसानियत का भी पहलू देखे, और उनकी जो ये एक्सक्यूज़ थी कि उनको अपने घर वालों की फ़िक्र थी, वो क्या कर लिए, वो एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिए, और उन्होंने हजरत हातिब रजी अल्लाह अन्हु को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी। और उनके लिए क्या कहा गया कि क्योंकि वो बदर के सहाबी है, जंग बदर में उन्होंने जंग लड़े थे, बदरी सहाबी है, इसलिए उनको क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। लेकिन इसके बारे में कुरान में कुछ आयतें भी नाजिल हुई हैं। तो उस आयत के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, उस आयत में इस तरह से लिखा हुआ है कि तुमने जब हिजरत कर ली और फिर तुम क्या करते हो, तुम अपने खानदान वालों के लिए इससे डर के तुम क्या करते हो, जो कुरैश लोग से दोस्ती करते हो, कुफ़ार से दोस्ती करते हो, तो फिर याद रखो कि आखिरत के दिन में कोई भी तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारा साथ देने नहीं आएँगे करके। तो यहाँ पे ये साहबी जो ये आयत है वो हज़रत हातिब के लिए यहाँ पे थी। और ये क्या है, ये सारे मुसलमानों के बारे में भी है कि अगर दुनिया में हम लोग है ना कुछ भी गलत काम करते हैं अल्लाह की इसमें मतलब रिश्ते अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान वालों के लिए, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए हम क्या करते हैं, दुनिया में कुछ भी गलत काम करते हैं, गलत तरीके से समझो अगर नहीं करे ताकि हमारे बच्चे अच्छे से रह सके, खा पी सके, अच्छे से ऐश से रह सके, और हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें अल्लाह के हुदूद की नाफरमानियां कर रहे हैं, तो कल के दिन क्या होगा, हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको सज़ा क्या मिलेगी, हमको ही मिलेंगी। कोई हमारे घर वाले वो ये सपोर्ट करने के लिए नहीं आ जाएँगे कि इन्होंने हमारे लिए किए थे तो हमको भी वो सज़ा में शामिल करो तब, लेकिन उस वक़्त क्या करेंगे, सब लोग अपना-अपना देखेंगे। हम जिनके लिए कर रहे हैं ये गलत काम, लेकिन वो लोग भी क्या नहीं करेंगे, हमारे सपोर्ट में नहीं आएँगे कि ये हमारे लिए किया गया तो इसलिए हम उनको बख्श दो या हम उनके साथ कुछ नरमी करो करके, यहाँ तक इतना भी बोलने के लिए वो हमारे घर वाले, हमारे करीबी रिश्तेदार जिनके लिए हम लोग ने इस दुनिया में गलत काम किए, वो हमारी इसके लिए बचाने के लिए नहीं आएँगे। तो ये सारे लोगों के लिए, हम सारे लोगों के लिए इस आयत में क्या है, सबक है
کہ دنیا میں ہم کسی بھی قریبی رشتے دار کے لیے اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو کل کے دن کیا کرنا پڑے گا ہم کو، جو ہم غلط کام کر رہے ہیں ہم کو خود اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا، جس کے لیے جس کی محبت میں ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے لیے ذرا بھی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا کر کے۔ اب یہ سب ہو گئی بات، اب ہے نا جو مسلمان ہے وہ کہاں کی طرف ہو گئے، مکے کے لیے روانہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو لیے، پورے 10,000، کیونکہ ابھی حکم ہو گیا تھا نا کہ اب ہم لوگ مکہ کی طرف جائیں گے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، سب کو تیار کر رہے، 10,000 لوگوں کو تیار کر لیے، اور یہ ہے نا رمضان میں کے مہینے میں 8ویں ہجری میں ہوئی تھی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ ابو رحم الغفاری کو انچارج بنائے مدینے کی، جیسے کہ وہ ہمیشہ کا کرتے تھے کہ جب بھی وہ نکلتے تھے مدینہ سے چھوڑ کے تو وہ کیا کرتے تھے، کسی کو اپنی جگہ پہ یہ کر کے جاتے تھے، انہوں نے ابو رحم الغفاری کو وہاں پہ بنائے۔ اور پھر ہے نا یہ سارے لوگ جب مکے کی طرف بڑھ رہے تو ان لوگ ایک جگہ پہ پہنچے جس کا نام تھا جوفا۔ جوفا کی وہاں پہنچے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ رستے میں ان کو کون ملے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ان کے چاچا ہے، ان کے چاچا حضرت عباس بن رضی اللہ عنہ اپنی اور اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ نکلے تھے۔ کہاں سے نکلے تھے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، وہ اسلام تو پہلے ہی قبول کر چکے تھے، اب وہ کیا کر رہے تھے، مکہ بھی چھوڑ کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھے کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بھی کیا ہو گئے، وہ بھی وہ جنگ میں شامل ہو گئے۔ اب پھر اور ان لوگ ہے نا ابا کی طرف پہنچے تو ان کو اور دو یہ ملے، کون تھے، ایک سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ، اور یہ جو تھے دونوں وہ بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن لگتے تھے، چاچا زاد بھائی لگتے تھے۔ تو لیکن یہ جو لوگ تھے جب مکہ میں ہے نا یہ لوگ ہے نا بہت زیادہ کیا کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے۔ تو ان لوگ نے کیا کیے، ان لوگ نے دیکھے، اب مطلب اب مکے کی حالت کیا ہو گئی ہے، دیکھو سب سے پہلے تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد جو تھا وہاں پر ہے نا بہت سارے لوگ نے کیا کیے، اسلام قبول کر لیے، ان لوگ کے دل نرم پڑ گئے تھے کیونکہ مدینے سے کوئی بھی مکہ جا سکتا تھا، اور یہ کرتے تھے نا ان لوگ دین کی دعوت دیتے تھے، قرآن کی آیت کی تلاوت وہاں پہ ہوتی تھی، تو اس لیے بہت سارے لوگ وہاں پہ اسلام لا ہی چکے تھے، سب کے دل ایسے ایسے بدل رہے تھے، جو نیک لوگ تھے اچھے لوگ تھے ان لوگ کے دل بدل رہے تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو دو لوگ تھے ان لوگ بھی جب دشمنی کر رہے تھے تو ان لوگ نے بہت انتہا طور کی دشمنی کی تھی، لیکن اب ان لوگ کے دل تھوڑے نرم پڑ گئے تھے، اب ان لوگ کو بات سمجھ میں آ گئی تھی، حق سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن ان لوگ نے جو کام کر دیے ہیں تو وہ غلط تو کام کیے ہی تھے، تو اب لیکن لوگ کی ہمت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اور یہاں پہ جو یہ سفیان بن حارث ہے نا، یہ جو سفیان جو ام حبیبہ کے ابا ہے وہ نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے ہے چاچا زاد بھائی۔ تو اب یہ دونوں یہاں پہ سفیان بن حارث اور عبداللہ، اب یہ ہے نا ان لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگ صحابہ کے پاس جا رہے کہ ہم کو کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ، مطلب ان لوگ ڈر رہے ہیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کے لیے۔ تو وہ ان کو ہے نا دوسرے صحابہ نے تو یہ نہیں کیے، لیکن حضرت علی جو تھے انہوں نے کیا بولے کہ اچھا جب تم جاؤ گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تم ہے نا وہی بات بولنا جو یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ نے بولے تھے، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم بات کرنا۔ تو انہوں نے بتا دیے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرو کر کے۔ تو انہوں نے جس طرح سے حضرت علی نے بتائے تھے، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بولے کہ قرآن کی جو آیت ہے وہ کہو کہ قالوا تاللہ لقد اشرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کا مطلب ہے کہ تحقیق اللہ کی قسم کہ بے شک اللہ نے آپ کو کیا کیے، ہم پر ترجیح دیے، اور بے شک ہم کیا ہے، خطا کاروں میں سے ہے۔ تو جب یہ بات سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جواب دیے تھے، اسی طرح ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیے کہ کیا ہوگا کہ آج سے ہے نا کوئی تمہارے سے کوئی بھی انتقام نہیں لیا جائے گا، اور اللہ کیا کرے تم کو معاف کر دے، اور اللہ کیسا ہے، بہت ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو دونوں چاچا زاد بھائی ہیں ان کو کیا کیے، ان کو معاف کر دیے، جبکہ انہوں نے بھی کیا کیے تھے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت، جب مکے میں تھے بہت خراب سلوک کیے تھے، لیکن جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
यूसुफ सलाम के साथ किस तरह से उन्होंने उनको कत्ल करने तक की कोशिश कर दिए थे, उस तरह से खराब सलूक किए थे। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारी आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी क्या किए थे, माफ कर दिए थे। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या किए, उनको माफ कर दिए। फिर उस वो वक्त उनके जो भाई थे उन्होंने क्या किए, कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर ली। फिर अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के साथ आगे जा रहे हैं, और उस वक्त ये जब रमजान का महीना है तो फिर वो उन लोग ने रोजे भी रखे हुए थे। लेकिन अब एकदम जब नजदीक आ गए तो उन लोग ने क्या किए, उस पान और एक जगह पर आए जहाँ पे पानी की नहर थी, तो वहां पर आके नबी वसल्लम ने अपना रोजा तोड़ दिए, और बाकी सारे साहबा लोग ने भी रोजा तोड़ दिए। और अब इन लोग पूरे एकदम मक्के के करीब आ गए हैं, तो फिर नबी वसल्लम ने रात को क्या किए, आग जलाने का हुक्म दे दिए। तो पूरे जितने लोग थे उन्होंने क्या किए, कैंप डाले और आग जलाए। तो अब ये आग जब जलाए तो 10,000 के लोग के करीब लोग जब आग जलाने लगे, मतलब छोटी छोटी से भी आग जलाने दो या खाना पकाने के लिए या उजाला करने के लिए, तो मक्का कैसा होने लगा, एकदम मक्के के बाजू में जल रही है तो एकदम पूरा आसमान पूरा चमक रहा है, और आसपास उन लोग के पूरे मालूम पड़ रहा है कि पूरे जो मुसलमान लोग हैं, इतने सारे मुसलमान लोग आ गए हैं, और मक्के से पूरा ये साफ मंजर नजर आ रहा है। अब ये सब है ना, वो टाइम पे बहुत ज्यादा एकदम साफ नजर आता था, क्योंकि उस टाइम पे जैसे आज की इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, तो ये जो अगर हम लोग रहते हैं सिटीज में तो ये सब हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि पहले अगर लाइट नहीं रहती तो आज हम लोग को रोड लाइट ये सब इतनी रहती है तो हमको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पर लाइट नहीं है, अगर अंधेरे जैसी जगह है और वहां पर तुम करीब में भी कहीं रोशनी थोड़ी सी भी कर लो तो वो रोशनी बराबर से नजर आती है। तो इस तरह से वहाँ जो मक्का था उसको समझ में आ गया, मक्का के सारे लोगों को समझ में आ गया कि मुसलमान लोग आ गए हैं। तो अबू सुफियान जो है वहां पे, जो अभी कुरैश के जो सरदार है वो, और उनके भाई हाकिम बिन हिजामा और बुदैल बिन वर्का, इनके साथ वो क्या कर रहे हैं, मक्का से देख रहे हैं, और उन लोग सारे मुसलमानों को देख रहे हैं। तो अब इन लोग क्या करे, इन लोग बाहर निकले और इन लोग बोले चलो अब हम क्या करेंगे, हम मुसलमानों से जाके मिलेंगे, नबी सल्लम से मिलेंगे जाके। तो इन लोग गए मिलने के लिए। अब वो जो मुसलमान लोग के जो कैंप है उसकी तरफ इन लोग यहाँ पे जा रहे हैं, अबू सुफियान जा रहे हैं। और अबू सुफियान कैसे है कि उस वक्त तो कुरैश के लीडर है, तो सबसे बड़े दुश्मन है समझ जा। तो जो जितने लोग थे वहां पे, तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले किससे मिल गए, हजरत अब्बास से मिल गए। और हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु क्या लगते हैं, चाचा लगते हैं, इनके भी चाचा लगते हैं और नबी वसल्लम के भी चाचा लगते हैं। तो उन्होंने क्या बोले कि अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी हिफाजत में तुमको जाके नबी वसल्लम से डायरेक्ट मिलने आने के लिए लेके जाता हूँ, क्योंकि वो अकेले जाएंगे मिलने के लिए तो जरूरी नहीं है कि मुसलमान लोग जो है वो नबी वसल्लम तक उनको पास में जाने दे। तो उन्होंने क्या किए, लेके गए। तो अब जब उन्होंने नबी वसल्लम के पास में लेके गए तो नबी वसल्लम ने देखे हजरत सुफियान को, और बोले कि अब और तुम कितनी देर लगाओगे इस्लाम कबूल करने के लिए। तो फिर जब वो ये बात सुने तो नबी वसल्लम की, तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने वहां पे इस्लाम कबूल कर लिए। फिर जब वहाँ पे हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु थे तो उन्होंने बोले कि जो अबू सुफियान है और ये वहाँ कबीले के सरदार है, तो इनको है ना कोई चीज ऐसी दे दी थे जिससे क्या हो सके, वो अपनी बात ये कर सके, क्या उनका रुतबा भी रह जाए, वो मतलब वो कुरैश के जो सरदार है उससे उनका रुतबा भी हो जाए। तो कुछ आप उनको कुछ इस तरह से कुछ दे दीजिए। तो उस पर नबी वसल्लम ने बोले कि अबू सुफियान से कह दो कि तुम जाके अपने लोगों को कह दो कि जो भी तुम्हारे घर में रहेगा वो क्या रहेगा, वो अमन में रहेगा। अगर जब हम अटैक करेंगे और जो भी तुम्हारे घर में रहेगा वो अमन में रहेगा। तो और फिर मतलब अभी अगर हम लोग अटैक करेंगे तो जो तुम्हारे घर में है वो अमन में रहेगा, और जो मक्के की हुदूद में है वो भी अमन में रहेगा, और जो अपना घर बंद करके अंदर है, घर के अंदर मतलब वो कोई लड़ने के इरादे से बाहर नहीं है, तो वो भी क्या है, अमन में है करके। तो ये बात नबी वसल्लम ने बता दी। तो अबू सुफियान गए और उन्होंने ये बात है ना घर मक्के वालों को बता दिए कि मक्के वाले सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ एक बहुत बड़ी सी आर्मी लेकर आए हैं हम पे अटैक करने के लिए। और लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो भी अबू सुफियान के घर के अंदर है वो क्या है, वो अमन में है। तो ये बात सुन के जो लोग थे उन लोग बोले, अबू सुफियान तुम्हारा घर कितना बड़ा है, कितने लोग मक्के के तुम्हारे घर के अंदर आ जाएंगे। तो फिर उस पर अबू सुफियान ने बोले कि जो अपने घर के अंदर है दरवाजा बंद करके वो भी अमन में है, और जो खाने काबा के अंदर है, हदूद के अंदर है, वो भी अमन में है।
अब देखो ये मुसलमान लोग जा रहे हैं मक्का के ऊपर अटैक करने के लिए, और हम पहले जानते हैं कि मक्का जो कैसा शहर है, हुर्मत वाला शहर है। कदीम जमाने से क्या हो रहा है कि वहाँ पे कभी भी है ना कोई लड़ाई नहीं होती। हमने देखा है कि वो इतना ये है हुर्मत वाला शहर कि उसमें जो अगर दुश्मन भी मिल जाता था तो उसको भी ये नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इस शहर को नबी सल्लम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कर रहे हैं, उसको हलाल कर रहे हैं, मतलब उस शहर में जंग लड़ना हलाल कर रहे। लेकिन ये भी है ना, ये हुर्मत जो थी वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए, अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो मतलब देखो तुमको लड़ना है तो मतलब खून बहा भी होगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए तुम्हारे लिए क्या कर लिया गया था, नबी सल्लम पे ये शहर को हलाल कर दिया गया था। और लेकिन फिर भी नबी सल्लम क्या चाहते थे कि जो उस शहर की जो ये है वो पामाल नहीं हो, क्योंकि वहां पे उस जगह पे जंग नहीं हो, ये नहीं होता है, खून खराबा नहीं होता है, तो उसी तरह से रहे। तो ये जो मक्का मक्का की जो फतेह थी, तो ये है ना इसमें मतलब ज्यादा कोई भी ये नहीं हुआ था, जंग नहीं हुई थी। बिना जंग लड़े ही क्या हो गया था, मक्का फतेह हो गया था। कुछ लोग थे जो मक्का के बाहर, जो कुछ कुरैश के कुछ थोड़े से ही लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपोज किए। बाकी जो सारा का सारा जो मक्के के लोग थे उन लोग ने क्या किए थे, हथियार डाल दिए थे, और मक्का की क्या हो गई थी, फतह हो गई थी। तो इंशाल्लाह हम लोग है ना जो आगे है, आगे हम लोग लेंगे कि किस तरह से अभी नबी वसल्लम ने ये सब हुक्म तो दे दिए कि जो भी मक्के की हुदूद में है, जो भी अबू सुफियान की हुदूद में और जो भी घर के अंदर है, वो सारे लोग अमन में है। और उसके बाद दूसरी जो मंगल की सुबह के दिन नबी सल्लम ने क्या किया, अपने सहाबाओं के साथ क्या कर रहे हैं, मक्का पे चढ़ाई कर रहे हैं। और ये रमजान की 17 तारीख के दिन नबी सल्लम ने क्या किए थे, मक्के पर चढ़ाई किए थे। तो लेकिन नबी वसल्लम ने सिर्फ एक साथ सारे सहाबा नहीं किए थे, उन्होंने अलग अलग टुकड़ियां कर दिए थे और सबको हुक्म दिए थे कि इस तरह से जाना, और अगर तुम्हारे साथ कोई भी लड़ाई करे तो पहले तुम अटैक नहीं करना, अगर तुम्हारे साथ कोई लड़ाई करने आया तब तुम क्या करना, तब तुम उस पे अटैक करना, करके इस तरह से नबी वसल्लम ने सारे अपने सहाबाओं को बता दिए कि इस तरह से तुमको करना है। फिर मंगल की सुबह सुबह नबी वसल्लम ने क्या किए, मक्का पे चढ़ाई की। तो आज के लिए हम लोग इंशाल्लाह यहीं तक का रखते हैं, फिर इसके आगे क्या हुआ हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते में देखेंगे। मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।